ہیڈلائنز آپ نے جانی. خبر آپ کو دیں, اسلام آباد ہائی کورٹ پی ٹی آئی کے گرفتار رہنماؤں کا جسمانی ریمانڈ کالعدم قرار دے دیا گیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے گرفتار ایم این ایس کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے. حسین احمد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں, آگاہ کیجیے حسین. جی دیکھیے, اسلام آباد ہائی کورٹ سے عام پیشرفت ہوئی ہے. پی ٹی آئی ایم این ایز کا 8 روزہ جسمانی ریمانڈ کالعدم قرار دے دیا گیا ہے. ساتھ ساتھ جو شعیب شاہین وکیل تھے ان کا بھی جسمانی ریمانڈ کالعدم قرار دے دیا گیا ہے. چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس سمن رفت امتیاز نے محفوظ شدہ فیصلہ سنایا ہے. پی ٹی آئی کا جو جلسہ ہوا تھا اس کے بعد درج مقدمات ہوئے تھے اور گرفتار کیے گئے تھے جو یہ ارکان اسمبلی اور دیگر رہنما. عدالت نے تمام گرفتار رہنماؤں کا جسمانی ریمانڈ کالعدم قرار دیتے ہوئے انہیں جوڈیشل کرنے کا حکم دے دیا ہے. جیل بھیج دیا گیا ہے. ممبران اسمبلی میں احمد چٹھا, ڈوگر, شیر افضل مروت جو ہے وہ شامل ہیں. اسی طرح دیگر ارکان اسمبلی میں شیخ وقاص اکرم مخدوم, شاہزین قریشی اور پی ٹی آئی رہنما شعیب شاہین جو ہے وہ شامل ہیں. 2 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ بھی جو ہے وہ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس سمن رفت نے جاری کر دیا ہے. اور تھانہ سنجانی اور دیگر جو مقدمات تھے ان میں جو 8 روزہ جسمانی ریمانڈ انسداد دہشت گردی عدالت سے دیا گیا تھا وہ کالعدم قرار دیتے ہوئے تمام جو ملزمان تھے ان کو جوڈیشل کر دیا گیا ہے. جی شکریہ آپ کا حسین. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس جاری ہے. اجلاس میں اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کے تقرر کے لیے رولز کی منظوری پر غور کیا جا رہا ہے. اجلاس میں تمام ہائی کورٹس کے چیف جسٹس اور سینئر ترین ججز شریک ہیں. ہائی کورٹس میں ججوں کی تعیناتی اور جوڈیشل کمیشن رولز کی منظوری پر غور کیا جا رہا ہے. جوڈیشل کمیشن اجلاس میں ہائی کورٹس کے سینئر ترین جج ممبر نہ ہونے پر شرکت نہیں کرتے, لیکن ذرائع کا کہنا ہے کہ ہائی کورٹس کے چیف جسٹس کے ساتھ سینئر ترین ججوں کو خصوصی طور پر مدعو کیا گیا ہے. 4 صوبائی وزرائے قانون بھی شریک ہیں. عام طور پر جس ہائی کورٹ میں ججوں کی تعیناتی ہو اس کے متعلقہ چیف جسٹس اور وزیر قانون شرکت کرتے ہیں. اسپیکر ایاز سعدی کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہو گیا ہے. پی ٹی آئی کی گرفتار 10 اراکین کو پارلیمنٹ پہنچا دیا گیا. پولیس نے 10 اراکین کو سارجن ایٹ آرمز کے حوالے کیا. اراکین آج بھی قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کریں گے. گرفتار اراکین کے پروڈکشن آرڈر رواں سیشن کے لیے جاری کیے گئے ہیں. اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوب کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف فوری انکوائری کرائیں کہ کون لوگ تھے جنہوں نے ارکان کو پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر سے گرفتار کیا. ان کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کو جتنی دیر جیل میں رکھیں گے ان کی جان کو خطرہ ہے. آئی پی پی اس معاہدے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئے. ہم تو بجلی کی قیمت 2.5 سینٹ پر لے آئے تھے. چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کہتے ہیں خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے پہلے اجلاس میں ابتدائی گزارشات پیش کر دی ہیں. یہ اعلیٰ سطح کی کمیٹی ہے جس میں ہر سیاسی جماعت کا رکن موجود ہے. انہیں اہمیت دیں اور ان کے فیصلوں کو سنجیدہ لیں. کی میٹنگ تو فرسٹ میٹنگ تھی اسپیشل کمیٹی کی. میں نے ان کو یہ کہا جو کمیٹی آپ نے بنائی ہے یہ نہ صرف یہ کہ بڑی ہائی لیول کمیٹی ہے بلکہ اس میں ہر پولیٹیکل پارٹی جو اس ایوان میں ریپرزینٹ کرتی ہے ان کا ہیڈ اس میں موجود ہے, تو اس کو وہی امپورٹنس دے دے. ان کی جو ڈیسیجنز ہیں وہ بھی سیریس لے لے. اپوزیشن کی بیسیکلی انفیکٹ میں عمر صاحب آج انکلوڈ ہو گئے, رانا صاحب بھی انکلوڈ ہو گئے اور دوسرے ہیں, تو ہم 4 ہیں. باقی یہ تو میجارٹی میں ہمارے سعد اللہ بلوچ کو اٹھایا گیا ہے. بات کی تھی کل, یہ میں نے پوائنٹ اٹھایا تھا کمیٹی میں, آج بھی اٹھائیں گے. دیکھتے ہیں. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کہتے ہیں کہ پارلیمان نے اپنی جگہ چھوڑی تو پھر کسی سے شکوہ کیا کرنا ہے. باتوں کے اختلافات ہوتے ہیں. کل جس جماعت کی آج حکومت ہے اس سے زیادہ شدت کے ساتھ میاں نواز شریف صاحب سے لے کر قریبی رفقا کے کچھ تقریباً 30 لوگوں کی لسٹ میں تھے. اب عمران خان صاحب کی حکومت تھی اور ان کے خلاف تھا. آج عمران خان صاحب کے اوپر مقدمات ہیں. لیکن یہ ایوان اس لیے نہیں ہے کہ آپ اس میں جا کر ان ساری بنیادوں کو توڑ دیں, اس کو ہلا دیں, پھر اس کے بعد آپ شکوہ کریں کہ یہ وہ پھر آہستہ آہستہ ٹرکل ہو کے آپ کے گریبان تک ضرور آ جاتا ہے. یہ آپ کے گریبان تک آیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ سب آپ کر رہے تھے تب آپ احساس نہیں کر رہے تھے. تکلیف آپ آج اٹھا رہے ہیں. اب مجھے آپ کی اس معاملے میں ایک کرمنل ایکٹ اگر کسی نے کیا اس کو پکڑا جانا چاہیے. بیسک سٹرکچر کا جو ججمنٹ ہے, وائی از پارلیمنٹ سلیپنگ اوور اٹ, اینڈ آئی ایم سیئنگ دس ٹو ایوری ون. I am saying this to the treasury, I am saying this to the opposition. Political parties کو بات کرنی چاہیے. تو پھر تو ڈورمنٹ پارلیمنٹ ہے, آپ جگہ چھوڑ رہے ہیں, اسپیس چھوڑ رہے ہیں, کوئی اور کور کر لے گا, پھر کسی پہ کیا اعتراض ہے. اب آپ اس میں تعویلیں ڈھونڈ رہے ہیں. سینٹ میں ڈاکٹر دنیش کمار اور زرکا سہروردی میں تلخ کلامی. دنیش کمار نے کہا کہ آپ شعر و شاعری کر رہی ہیں, مجھے وزراء سے سوالات کرنے دیں, بیچ میں نہ بولیں.
बैठ जाएं, वरना मैं ऐवान चलने नहीं दूंगा। जरका सहरवर्दी भी भड़क उठी, बैठने से इनकार कर दिया। डेप्यूटी चेयरमैन ने सवालात कमेटी को रेफर कर दिए। साहब से क्वेश्चन है, आपको मैं बाद में दूंगा। अपना सिस्टर अभी आप बैठे भी सही ये बहुत नाजायज है। इस तरह से डिक्टेटेशन नहीं करें प्लीज। मैं भी इसका मैं नहीं छोड़ूंगा, करूंगा ये बलाशक बैठे नहीं। अब मेरा ब्लड प्रेशर नहीं चढ़ा। डॉक्टर साहिबा आप बैठे प्लीज, आप बैठे, मैं बोलूं बैठे, आप बैठे। ये शेरो शायरी सुना रही है और मुझे कह रही है कि आप अजीब बात है। आप लीडर ऑफ अपोजिशन हमेशा आप इनकी नई बारी जो है दनेश कुमार साहब की। यार खातून के साथ झगड़ा कैसे? नहीं खातून के साथ खातून भी तो सुने ना सर। या तो हमें नहीं छोड़े, हम चले जाएं। इस ऐवान को हाईजैक अगर करना है, इन्होंने करना है, तो हमें इस्तीफे देकर हम जाएं। आप पता नहीं क्यों इस सीट पर बैठकर, मैं तो हैरान हूँ। इस तरह से नहीं होने दूंगा, ये ऐवान चलने नहीं दूंगा। सर आप मुझे 2 सवाल नहीं पूछने पहले से क्योंकि मैं कमजोर पार्टी। आप सवाल नहीं करे थी, शेर व शायरी किया। ये नहीं चलेगा सर, नहीं चलेगा। आप लोग किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते तो इसके मुतालिक सवालात है, इसको कमेटी को रेफर कर। किसी भी सेनेटर की बेइज्जती हमारी बेइज्जती है, फैसल वादा का सेनेट में इजहार ख्याल। डिप्टी चेयरमैन सेनेट से कहा, सेनेटर समीना के मामले पर आपने एक्शन ना लिया तो हम बाइकआउट करेंगे। हुकूमती अरकान ने सेनेटर फलकनाज चित्राली को ऐवान से ना निकालने पर वॉकआउट भी किया। सेनेटर समीना साहिबा के लिए बात कर रहा हूँ। उनकी बेइज्जती हमारी बेइज्जती है, किसी भी सेनेटर की बेइज्जती हमारी बेइज्जती है। और अगर आपने इस पे एक्शन नहीं लिया तो हम सेनेट का बाइकआउट करेंगे। अभी कल शिबली साहब के ऊपर बात आएगी, हम इसी तरह खड़े होंगे। पीटीआई की किसी खातून के ऊपर बात आएगी, हम ऐसे ही खड़े होंगे, इसी तरह आगे बढ़ेंगे उनके लिए। लेकिन सर अगर आपने सेनेटर समीना साहिबा को एड्रेस नहीं किया और लॉजिकली और लीगली वो बात ठीक कर रही हैं कि अगर सस्पेंशन 2 दिन की थी, मैं अपने लिए बात नहीं कर रहा, ठीक है खातून है, दरगुजर आदमी कर देता है। लेकिन अगर बहन हो, अगर वो कहती है कि भाई हूं, तो वो माफी मांग लेती। बहन है, माफी हम 10 दफा माफी मांग लेते अगर गलती होती। माफी से कोई छोटा नहीं होता। लेकिन अगर माफी नहीं मांगी जा रही और सेनेटर समीना साहिबा का जो उनकी रिस्पेक्ट है वो कॉम्प्रोमाइज होगी सर, तो हम सेनेट का बाइकआउट करेंगे। एवरीबडी विल वॉक आउट। आपकी पॉइंट आ गई। हाँ बट सर इसमें आपने अभी एक्शन लेना है ना सर। अगर आपने फैसला करना है तो फिर आप आ जाए यहाँ पे। जी इन्होंने हाउस को डिसरप्ट करना है। इन ये तय करके आए थे कि आज हम ये बात नहीं करने देंगे। ये ड्रामा जो कि ये रचा रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम भी देख रहे हैं और उन्हें मालूम है ये सब कुछ क्यों किया। ये कठपुतलियां हैं। पार्लियामेंट हाउस के बाहर ले चलेंगे सेनेटर इरफात सिद्दीकी इस वक्त मीडिया से बात जाने कहां लेके जाएगी। अगर हर सूबा किसी न किसी सूबे की सरहद किसी न किसी दूसरे मुल्क से मिलती है, अफगानिस्तान से अगर खैबर पख्तूनख्वा की मिलती है, पंजाब से भारत की भी मिलती है, बलूचिस्तान से अफगानिस्तान की मिलती है, ईरान की मिलती है, हम इधर गिलगित बल्तिस्तान चले जाएं तो चाइना से मिलती है। तो क्या हर इलाका अपनी अपनी खारजा पॉलिसी बनाएगा? क्या पंजाब भारत के साथ इस तरह के मामलात तय कर सकता है जिस तरह के इन्होंने शुरू कर दिए हैं? क्या बलूचिस्तान ईरान के साथ मामला तय कर सकता है इस तरह के? क्या सिंध जो है वो भी भारत के साथ या दूसरे करीबी किसी और मुल्क के साथ इस तरह के मामलात कर सकता है? ये एक बड़ी ही खौफनाक रिवायत ये डालने जा रहे हैं। इन्होंने IMF को खत लिखे और अपने गंदे कपड़े वहां धोने की कोशिश की, हमारे फंड्स रोकने की कोशिश की। इन्होंने IMF के मरकज के सामने जाके मुजाहरे कराए। इन्होंने अमेरिकी कांग्रेस में जाके दुहाई दी और वहां से करारदादें मंजूर करवाई। इन्होंने वो कुछ किया जो कभी हमारी तारीख में नहीं हुआ। साइफर को मजाक बनाया और हमारी सफारतकारी की राह में रुकावटें डाली। अब ये जो सिलसिला शुरू हुआ है कि अपनी अपनी खारजा पॉलिसी बना लो और अपने अपने मामला तय कर लो। अफगानिस्तान के साथ जो भी पॉलिसी होनी है वो वफाक ने तय करनी है। और मैं ये इशू उठाना चाहता था आज सेनेट के अंदर जो हाउस ऑफ फेडरेशन कहलाता है, लेकिन वहाँ कुछ हालात ऐसे हो गए कि सेशन आगे नहीं चल सका और मुझे आपसे बात करना पड़ी। हम इसको फॉर्मली लेके आएंगे सेनेट के एजेंडे पे, बहस करेंगे और मुहासबा करेंगे कि ये कौन सी ये आईन की खिलाफ वर्जी है, दस्तूर की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान की पहले आपने ये किया कि 60,000 50,000 बंदे वहाँ से ला के यहाँ बिठा दिए, जो आज तक हम दहशत गर्दी भुगत रहे हैं।
अब आप एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल के खुद ही मामला तय करने लगे हैं, खुद ही सरहदी मुआहदे करने लगे हैं। भाई आप ये क्या करने जा रहे हैं? आपकी किस किस चीज़ को नज़रअंदाज किया जाए? हम आपकी गाली को नज़रअंदाज कर सकते हैं, आपकी पगड़ी उछालने को नज़रअंदाज कर सकते हैं, आप पंजाब की वज़ीर आला के बारे में जो रिमार्क्स देते हैं हम उन्हें भी नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान की सलामती को, पाकिस्तान की सिक्योरिटी को, पाकिस्तान के दिफा को, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को तमाशा बनाएंगे तो ये नाकाबिले बर्दाश्त है। इसका नोटिस लिया जाएगा, हुकूमत भी लेगी और हम पार्लियामेंट के अंदर बड़ी तवाना आवाज़ उठाएंगे। मेरे साथ बैरिस्टर अकील खड़े हैं जो कौमी असम्बली के मेंबर हैं। ये मामला कौमी असम्बली में भी उठाया जाएगा, सेनेट में भी उठाया जाएगा और हम अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट से भी इस एहतजाज का हक महफूज रखते हैं कि वो हमारे दफ्तर खारजा को एतमाद में लिए बगैर अगर इस तरह सूबाई इकाइयों के साथ मिल के कोई कंस्पिरेसी करेंगे या कोई ऐसे मामला तय करने की कोशिश करेंगे तो ये बैन अल-अक़वामी मुआहदों की भी और सफारतकारी के आदाब की भी बड़ी खिलाफ वर्जी होगी। तो मैं ये तंबीह करता हूँ गंडापुर साहब से कि वो बेशक अपना करें हर मामले में, लेकिन पाकिस्तान की सलामती के हवाले से, खारजा अमूर के हवाले से अगर इस तरह हुआ तो फिर तो अमेरिका की 50 रियासतें कहेंगी जी कि हम अपनी अपनी खारजा पॉलिसी बनाएंगे। अमेरिका इजाज़त देगा उसकी? 28 रियासतें हैं हमारे पड़ोसी इंडिया की, 28 वहाँ खारजा पॉलिसियाँ बन सकती हैं। 2 दर्जन के करीब सूबे हैं चाइना के, क्या वहाँ हर सूबा अपनी अलग खारजा पॉलिसी बना सकता है? कौन सी रवायतें आप डाल रहे हैं? इस मुल्क को कहाँ ले जाना चाहते हैं आप? हर चीज़ की कोई हद होनी चाहिए। लिहाजा हम इसकी बड़ी पुरजोर मजम्मत करते हैं और इसके खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर भी, हुकूमत के लेवल पे भी, दफ्तर खारजा के लेवल पे भी, हर सतह पे इंशाल्लाह इसकी मज़ाहमत करेंगे। बहुत शुक्रिया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे पार्लियामेंट हाउस के बाहर। उन्होंने कहा था ऐसा नहीं हो सकता कि हर सूबा अपनी सिफारतकारी करे, अफगानिस्तान के साथ जो भी पॉलिसी तय करनी है विफाक तय करेगा। वज़ीर दाखिला गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से मिलकर सूबे में अमन अमान यकीनी बनाएं, वज़ीर आज़म ने हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का टेलीफोनिक राबता हुआ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आज़म को सूबे में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सूबे में अमन के क़याम और आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाली पुलिस खुद अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो चुकी है। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि गवर्नर फैसल करीम कुंडी वज़ीर दाखिला के साथ मिलकर अमन अमान यकीनी बनाने के लिए फौरी इक़दामात करें। वज़ीर ख़ुराह खैबर पख्तूनख्वा ज़ाहिर शाह तोरो कहते हैं कि फैसल करीम कुंडी अपने आईनी किरदार तक महदूद रहें, वरना गवर्नर हाउस में दाखिला बंद किया जा सकता है। राना सना बयान बाजी से बाज आ जाएं, लाहौर में कामयाब जलसा करके नून लीग को बताएंगे। पख्तूनख्वा के गवर्नर को चाहिए कि वो अपने आईनी किरदार तक महदूद रहें, अमन अमान के हवाले से बयानात देने से बाज आ जाएं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा उनके खिलाफ बड़े से बड़ा कदम भी उठा सकते हैं। गवर्नर हाउस में उनका दाखिला भी बंद किया है। राना सनाउल्लाह बयानात देकर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान गलत फहमियों और नफरतों को बढ़ा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम हर सूरत पंजाब में आएंगे, हम लाहौर जरूर जाएंगे और एक कामयाब जलसा करके मुस्लिम लीग नून को बताएंगे कि पंजाब के अवाम किसके साथ है। हम खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की हिमायत नहीं करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नरशिप की जरूरत नहीं, इससे बेहतर है पकौड़े बेचें। JUIF के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला कहते हैं, वज़ीर आला KP कह रहा है अफगानिस्तान से बात की तजवीज दे रहा हूँ। ऐसी कोई एफर्ट हुई तो आप समझेंगे कि सूबे के मजम्मत करेंगे। हमारी पार्टी का जो बुनियादी माजी रही है पार्टी की यही है कि उन्होंने कभी भी गवर्नर राज की हिमायत नहीं किया, ना वही गवर्नर राज की हिमायत करेगा। हमें वहाँ नुकसान हो रहा है और इलेक्शन में भी हमें नुकसान हुआ है और मौलाना साहब इलेक्शन में भी यही कहते रहे कि खैबर पख्तूनख्वा की अमन अमान की सूरत हाल नागुफ्तबी है। आज सब कह रहे हैं, गवर्नर भी कह रहे हैं KP खैबर पख्तूनख्वा का, वज़ीर आला भी कह रहे हैं कि सूरत हाल ठीक नहीं है। तो ठीक नहीं है, ठीक करने का जिम्मेदार फिर कौन है? आप अफगानिस्तान से क्यों बात नहीं करते हैं? आप इंडिया से बात करने के लिए तैयार है। मैं जहाँ तक मौलाना को समझता हूँ और मेरी ज़ाती राय है कि बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होगा। मौलाना साहब ठोकर मारेंगे ऐसी गवर्नरशिप को, है ना हाफिज साहब? जरूरत नहीं है इस गवर्नरशिप की, क्या जरूरत है?